Now let's take some more example to understand this concept. So underline the verbs in the following sentences. Students, understand these sentences carefully. First is tomatoes are very expensive these days. So are is a verb here. R क्या हुआ? Verb. Second sentence, soon it was dark. तो इसमें was क्या हुआ? Verb. Third sentence, his brother is in Delhi. So is here is a verb. In fourth sentence, the wolf killed the lamb. Killed is a verb. The rich girl has many dresses. So has is also a verb. Sixth, I know a funny little man. Know is a verb. Seventh, we have holidays. So have is a verb. Eighth, the sun rises in the east. Rises is a verb. Next, father is reading. Here is a two-word verb. Next, somebody has broken the cup. Has broken, two words verb. Next, I met an old friend in the market yesterday. Met is a single word verb. Children were solving sums. Were is a verb. School will open tomorrow after the holidays. So will open is a verb also. The little child speaks English very well. Speaks is a verb. Teacher was angry because we were late. So was angry and were are verbs. So I have underlined that words which are verbs. Some words are single word verb and some sentences have single word verb and some sentences have two words verb, or one sentence has three words verb. No, two words verb, right? Next, now what are main verbs and helping verb? So these topics are much important कि main verb कौन सा होता है, helping verb कौन सा होता है. So let's take some sentences. First is the boys play football in the evening. So play. So in second sentence, I go for a walk every day. In third sentence, Nisha sings a song. The word play, go and sings express meaning without any help. Such verbs called main or principal verbs. You can say main verb. कौन से verb main होते हैं? जो बिना किसी help के मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं. मीन्स यहाँ पे नहीं लिखा गया कि द बॉयज आर प्ले. नो, आर प्लेइंग तो नहीं यूज किया. तो यहाँ सिंगल वर्ब ही यूज किया गया. प्ले, वॉक एंड सिंग्स. मीन्स दे एक्सप्रेस मीनिंग्स विदाउट एनी हेल्प. तो बिना किसी हेल्प से मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस. द बॉयज आर प्लेइंग नाउ. I shall go for a walk tomorrow. Nisha can dance also. The verbs in these sentences are in two parts. In first sentence, are is the helping verb and playing is the main verb. Right? In second sentence, shall is the helping verb, go is the main verb. In third sentence, can is the helping verb, dance is the main verb. So, helping verb क्या हुए? These are also called, helping verbs are so called because they help the main verb. क्योंकि ये main verb की help करते हैं, इसीलिए इनको helping verb बोला जाता है. Because first sentence में हमने लिखा the boys are playing now. तो play के साथ are word use किया गया which is a helping verb. तो playing word को help कर रहा है वो. Right? So is, am, are, shall, go, can, these are helping verbs. Right? Helping verb also always comes before the main verb. तो जो main verb है students, आपको main verb के बारे में knowledge मिल चुकी है. जो main verb है उसके आगे ही helping verb use होता है. जैसे play main verb है, इसके आगे हमने are use किया. go main verb है, shall use किया. इसके आगे dance main verb है, can use किया. Right? So here is a list of some helping verb. तो हमारे पास कुछ helping verbs की list है. So understand this list properly.
So there are 5 categories: be family, have family, do family, can family and will family. राइट, सो बी फैमिली में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। कौन कौन से? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। और हैव फैमिली में हैव से क्लियर हुआ हो रहा है, हैज, हैव, हैड। डू फैमिली में डू, डिड, डज। और कैन फैमिली में कैन, कुड। विल फैमिली में विल, वुड, शैल, शुड। राइट, तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताते हैं? हेल्पिंग वर्ब टाइम के बारे में बताते हैं। राइट ना, हेल्पिंग वर्ब टाइम के बारे में बताते हैं। अगर इज, एम, आर लगा हुआ है तो प्रेजेंट की बात कर रही हैं। अगर वॉज, वर लगा हुआ तो पास्ट की बात कर रही हैं। अगर शैल, शुड, वुड, शुड लगा तो फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं। क्लियर? क्लियर? सम हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब। कैसे? माई ब्रदर इज 10 years old, तो 10 इज के साथ कोई वर्ब नहीं लगाया गया, तो यही मेन वर्ब है, यही हेल्पिंग वर्ब है, यही मेन वर्ब है। सुनीता तो इज है, सो इट शोज प्रेजेंट टाइम। सेकंड, सुनीता वॉज एब्सेंट yesterday, so was here is a main verb as well as helping verb and it shows past time. They have a beautiful painting. They have a beautiful painting. So have here is a main verb as well as helping verb. Clear? Now students, there are 5 forms of verb. Verb की वैसे मेन तो 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन उसके और 5 पार्ट होती हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, जैसे बेस में होता है गिव, हम एक वर्ड लेके चल रहे हैं गिव, तो सेकंड में अगर हम उसके साथ एस यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में तो गिव्स। थर्ड, पास्ट टेंस गेव। फोर्थ, पास्ट पार्टिसिपल गिवन। फिफ्थ, प्रेजेंट पार्टिसिपल गिविंग। राइट स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पास्ट और सिंगुलर प्रेजेंट टेंस हैं, ये सेंटेंस में ऐसे ही यूज हो सकते हैं बिना हेल्पिंग वर्ब के, लेकिन जो पास्ट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किए जा सकते। जैसे आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर, तो ड्रॉन क्या था यहाँ? पास्ट पार्टिसिपल, तो ड्रॉन के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगाया गया? हैव। तो नेक्स्ट ड्राइंग है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके साथ क्या लगाया गया? वॉज। राइट, इसके साथ वॉज लगाया गया। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव regular and irregular verbs. Students, you already have done these verbs in your previous class. तो थर्ड क्लास में भी आपने किए थे form of verbs. So in this class there is a little bit vast concept of verbs. थोड़ा सा वास्ट concept किया हमने। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, मेन वर्ब कौन से होते हैं, और वर्ब की मेन 5 फॉर्म्स कौन सी होती हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं। रेगुलर वर्ब वो होती हैं जिनमें सुफिक्स होता है डी और ईडी। जैसे लिव, लिव बेस फॉर्म है, इसका पास्ट होता है लिव्ड, हमने डी यूज किया, पास्ट पार्टिसिपल में भी डी यूज किया, तो लिव, लिव्ड, लिव्ड। यू कैन से 3 forms of live are live, lived, lived. So and in second word, want, wanted, wanted. In second word we have used ed. राइट, तो इसमें हमने ed यूज की है, तो दिस इज ऑल्सो अ रेगुलर वर्ब। तो इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? तो इसमें रेगुलर में सुफिक्स क्या था? जो किसी वर्ड के पीछे लगाया जाता है, सुफिक्स, प्रीफिक्स बिफोर द वर्ड, सुफिक्स आफ्टर द वर्ड। राइट, तो इरेगुलर वर्ड्स वर्ब वो होती हैं जिसमें सुफिक्स डी ईडी यूज नहीं होता। जैसे ईट, एट, ईटन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। राइट, तो these are irregular verb. We have some regular and irregular verbs, right?
सो लेट अस स्टार्ट. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ. तो हमने यहाँ 4 प्रिंसिपल फॉर्म्स लिखे. मेन जो वर्ब की फॉर्म है वैसे तो 3 ही होती हैं, लेकिन लास्ट में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज़ की है. सो इन ये वो वर्ड हैं जिनके पीछे डी या ईडी यूज़ करते हैं. सो लेट अस डू. फर्स्ट इज एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड. एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में सभी बेस वर्ड के पीछे आईएनजी यूज करनी है. एडवाइजिंग, राइट. तो एडवाइज में एस के बाद ई की बजाय आप आईएनजी यूज करोगे. एग्री, अग्रीड, अग्रीड, अग्रिंग. अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड, अप्लाइंग. बैट, बैटेड, बैटेड, बैटिंग. कैरी, कैरिड, कैरिड, कैरिंग. कॉपी, कॉपीड, कॉपीड, कॉपिंग. नेक्स्ट. So listen. Cry, cried, cried, crying. Drop, dropped, dropped, dropping. Flow, flowed, flowed, flowing. Right? Next, marry, married, married, marrying. Skip, skipped, skipped, skipping. Stop, stopped, stopped, stopping. Travel, traveled, traveled, traveling. Try, tried, tried, trying. Right? So students, we will do some forms of these verbs. Right? So no need to note down all the verbs. तो हम सभी नोटबुक में सभी वर्ड नहीं करेंगे, हम कुछ वर्ड्स करेंगे. आई विल प्रोवाइड नोट्स ऑफ दीज वर्ब्स. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इरेगुलर वर्ब्स, बी, वॉज, बीन, या बी, वर, बीन और बीइंग. राइट. नेक्स्ट, बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगिनिंग. राइट. सो नेक्स्ट है ब्लो, ब्लू, ब्लॉन. ब्लो, ब्लू, ब्लॉन. ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग. बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट. बाय, बॉट, बॉट. कैच, कॉट, कॉट. राइट. कम, केम, कम. कट और डिग ऐसे वर्ड हैं जिनकी कॉस्ट, कट, डिग, जिनमें कोई चेंज नहीं आता, सेम ही रहते हैं. कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट. कट, कट, कट. डिग, डग, डग. राइट. ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन. ईट, एट, ईटन. फॉल, फेल, फॉलन. फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन. गेट, गॉट, गॉटन भी होता है, गॉट भी होता है. गिव, गेव, गिवन. राइट. सो वी विल डू. So students, we will do some words of regular verbs and irregular verbs. I hope you have understood all these concepts of verbs. Fine. After watching video, you will note down verbs in your notebooks through the notes provided by you. Right? Thank you.